Okay, so yesterday we were looking at rotational EMF of a bar. तो हमने ट्रांसलेशनल देख लिया था। ट्रांसलेशन मतलब जब एक बार ट्रांसलेशन मोशन लीनियर मोशन परफॉर्म करता है इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हाउ मच इज द EMF इंड्यूस्ड। सिमिलरली हमको आज के केस में देखना है, बाय द वे हमने लास्ट सेशन में ये ऑलरेडी देखा है हमने, व्हाट हैपेंस व्हेन you have a bar magnet which is rotating in an external magnetic field. तो हमने EMF induced का इक्वेशन ऑलरेडी डिराइव किया था, बट वी वांट टू डू इट अगेन टुडे। तो हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लिया है B bar which is denoted by cross, मतलब the field is going inside the plane of your screen. Then we have a bar magnet which is inside the external magnetic field. इस बार मैग्नेट का लेंथ हमने लिया है L। हमने इस बार मैग्नेट को स्मॉल स्मॉल पीसेस में डी आर में डिवाइड करके रखा है। देन we have considered one such element dr at a distance r from pivot या फिर from one end of the bar। तो जैसे आप बार मैग्नेट को रोटेट करोगे तो फ्लक्स लिंक्ड विद द सॉरी इस बार को, नॉट बार मैग्नेट, इस जो बार को, इस मेटालिक बार, इज नॉट बार मैग्नेट। जैसे ही आप इस बार को रोटेट करोगे तो फ्लक्स लिंक्ड विद द बार विल चेंज and that will induce an EMF here, right? So as I told you that हमने इस बार को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स dr में डिवाइड करके रखा है। तो induced EMF in one such dr is given by dE is equal to BVdr, और ये dE is equal to small amount of EMF induced in this small portion dr कहाँ से आया? ये आपको याद है, हमने कल ही किया था, E is equal to BVL। तो small amount of EMF induced in small portion will be BVDL। यहाँ पे DL की जगह पे DR बोला है हमने, इसलिए BVDR। ओके, देन हमको देखना है व्हाट इज टोटल EMF इंड्यूस्ड। तो एज आई टोल्ड यू, टोटल EMF इंड्यूस्ड विल बी इंटीग्रेशन। हम पूरे के पूरे बार, क्योंकि पूरा बार रोटेट होगा, अगर पूरा बार रोटेट होगा तो पूरे बार में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मतलब EMF इंड्यूस विल बी फ्रॉम 0 to L dE, that is integration 0 to L BVdr, and therefore E is equal to 0 to L BV is V is R omega dr, and therefore you have E is equal to B omega 0 to L R dr, and therefore you have E is equal to B omega R square by 2 0 to L, which is equal to B omega L square by 2। ये आ गया आपका EMF इंड्यूस का इक्वेशन। ओके, तो स्लाइडिंग बार से कंपेयर करोगे तो स्लाइडिंग बार में EMF इंड्यूस्ड E was B omega L square, और for rotating bar it is B omega L square by 2। okay, that is the only difference। so let's note it down, easy था। so we are taking a rotating bar here। okay, so consider a bar of length L rotating in an external magnetic field B as shown in figure। okay, so
जैसे मैंने बताया आपको, ये जो बार है, इट इज अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स. Assume the bar to be made up of small elements, number of small elements, to be made up of number of small elements dr. Okay, consider one such element, consider one such element dr at a distance of r from pivot or pivot. Okay, so जैसे ही ये बार रोटेट होगा इन द मैग्नेटिक फील्ड with velocity v, there will be an EMF induced. Okay, so as the bar rotates, in the external field, with velocity, with tangential velocity v, या फिर with, that is better, with tangential velocity v, the flux linked with the bar changes, and hence EMF is induced. EMF is induced. Okay, so EMF induced in the small element, dr, is given by dE is equal to bvdr, but we know that v is equal to r omega, where omega is angular velocity. Therefore, total EMF induced in the bar, induced in the bar is given by E is equal to integration 0 to L dE, 0 to L b vr. Therefore, E is equal to integration 0 to L b, v is r omega dr. This is equal to b omega 0 to L r dr. Therefore, you have A is equal to b omega r square by 2, 0 to L. Therefore, A is equal to b omega L square by 2.
So this is the EMF induced in a rotating bar. Okay. So expression 1 gives EMF induced in a rotating bar. ओके तो बहुत सिंपल सा केस था ये, एक्सट्रीमली सिंपल. नाउ अब हमको देखना है व्हाट इज इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर. अब एनर्जी ट्रांसफर मतलब क्या, वी विल कम टू नो इन अ व्हाइल. सो लेट मी जस्ट फॉर द टाइम बीइंग start with this topic and then you later understand what I mean by energy transfer. Induction and energy transfer. So what do we have here is, तो पहले अच्छे से समझ लो हमको यहाँ पे क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है विच इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द स्क्रीन. मैं इसलिए इसको क्रॉस से डिनोट कर रहा हूं क्योंकि ये अंदर की तरफ जा रहा है. Then as you remember, by the way, we will need more space to do this, इसलिए I'm just taking it to the next page. तो हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है एज शोन हियर. अब इस एक्सटर्नल फील्ड में हमारे पास एक कॉइल है. ये हमने पहले भी किया है. पहले मतलब जो मैंने E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी का डेरिवेशन लिया था उसमें जो हमने कॉइल लिया था वैसा ही है ये. सो वी हैव दिस कॉइल ओवर हियर. ओके let's give it some name. वे coil है तो कुछ तो नाम देना पड़ेगा. Let's give it some name. Let's say it is PQRS. अब इसका जो ये साइड है L which is inside the field और this much part which is inside the field is X. तो SR पूरा का पूरा फील्ड नहीं है. SR साइड का एक स्मॉल पार्ट जो है वो फील्ड में है एंड दैट स्मॉल पार्ट लेट अस से इज X. तो X is the part of side SR which is inside the field और ये L है बेसिकली. हमने ये ऑलरेडी देखा that as soon as we start moving this coil outside with a velocity v bar या फिर force external force F external बोल देंगे, a current starts flowing through this coil. There's a current Q. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हमने इस लूप को PQRS को बाहर निकालने की कोशिश की तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस. मतलब इनिशियल फ्लक्स जो था, इनिशियल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, इट वाज B इज इक्वल टू फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, phi इज इक्वल टू B इंटू L इंटू X. क्योंकि फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया
और एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज L into X. So total flux linked with the coil is BLX. B into L into X is the flux linked with the coil. Okay. Then now जैसे आपने इसको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मतलब एक वेलोसिटी v बार से आप इसको बाहर निकाल रहे हो, तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एंड हेंस EMF इज इंड्यूस्ड। और हमने देखा था कल EMF इंड्यूस्ड इज, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, I am not worried about direction for the timing. I am just saying magnitude of EMF induced is equal to d phi by dt। अगर आपको याद होगा, आपने ये किया था BL dx by dt and that is BLV. So the magnitude of EMF induced is BLV, correct? जैसे लूप बाहर की तरफ सरकाने की कोशिश की, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स ने EMF इंड्यूस किया, उस EMF ने करंट इंड्यूस कर दिया। तो current induced is, let us say, small I, which is in clockwise direction. Okay, direction of current you can find out. Okay, so current, आपको पता है current is what? By Ohm's law, I is equal to V by R। मतलब I is equal to E by R यहाँ पे, where R is resistance। मैं ये जो coil मैंने यहाँ बताया है, I can actually show this coil as, मैं इस कॉइल को ऐसा भी दिखा सकता हूं कि ये एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस है, क्योंकि यू नो दैट हमने अगर कॉइल किसी भी मटेरियल से बनाया होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ मटेरियल, इरिस्पेक्टिव ऑफ यूजिंग कॉपर और समथिंग एल्स, ये जो कॉइल है इसका खुद का रेजिस्टेंस होगा। सो यू विल हैव रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल, हाँ, तो because resistance will depend on the material of the coil, so you have a coil here। मैं वही coil दिखा रहा हूँ, this is the same coil, सिर्फ मैं यहाँ बता रहा हूँ कि इस coil का resistance है R। you know that any substance has resistance, तो coil है R, इसमें current induce हुआ है I and there is some induced EMF E here। तो ऐसा दिखा सकते हैं हम लोग। तो प्रीवियस सेशन में हमने सिर्फ E is equal to d phi by dt तक की बात की थी। Now we are going one step ahead. We are talking about induced current here. Induced current is E by R and E is BLV. So this is equal to BLV by R. Okay, right? Good. हमको मिल गया current. Now, as I told you कि जैसे ही यहाँ पे current flow हो रहा है, तो there will be a force acting on a current carrying conductor inside a magnetic field। तो यहाँ पे एक force होगा F1, यहाँ पे एक force होगा F2, which will be basically cancelling out each other। तो you will have F1 bar and F2 bar cancelling out each other, and then there's another force here F bar जो कैंसिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा फोर्स नहीं है, तो you have a F here। There is no other force which is cancelling out this particular force। Okay, so now what we know that जब भी फोर्स की बात होगी तो you can talk about work done। और हमने देखा था कल वर्क डन कैसे लिखा जाता है। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट ऑल्सो वी कैन टॉक अबाउट पावर, क्योंकि पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर। सो यू कैन राइट दिस एज वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो पावर आपको मिल गया फोर्स इनटू वेलोसिटी। अगर मैं वेक्टर नोटेशन में लिखूं तो पावर इज इक्वल टू एफ बार डॉट वी बार, ऐसा आएगा, राइट। So what you have is, you have power is equal to force into velocity, F into V basically। अगर आप स्केलर नोटेशन में लिख रहे हो तो F बार डॉट V बार आएगा पावर। देन F, एज आई टोल्ड यू, हमने कल भी देखा था ये और प्रीवियस सेशन में 2-3 बार हुआ है, दैट दिस फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग पार्ट, ये जो PS है जिसका लेंथ L है, फोर्स इज गिवन बाय, अगर आपको याद है, इफ यू रिमेंबर, फोर्स इज इक्वल टू आई एल बार क्रॉस बी बार। मतलब ये था आई एल बी साइन थीटा, बट थीटा इज 90 डिग्री, तो साइन 90 इज 1, सो यू हैव एफ इज इक्वल टू, you have F is equal to B into I into L, राइट। और I हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, I क्या है हमारे पास, I है हमारे पास B into L into V by R और एक L, तो ये आपको मिलेगा B स्क्वायर L स्क्वायर V by R, ओके, राइट। तो यू हैव दिस फोर्स B स्क्वायर L स्क्वायर V by R। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है पावर P। पावर P इज F इंटू वी, F इज B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R इंटू V अगेन, तो ये आ जाएगा आपका B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। दिस इज पावर, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R, दिस इज पावर, राइट। अब तो वी हैव इक्वेशन ऑफ पावर नाउ। अब हमको पता है कि जब भी एक कंडक्टर में से करंट पास होता है, ओके, देन देयर इज जनरेशन ऑफ हीट, क्योंकि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लीड्स टू कोलिजन, कोलिजन लीड्स टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लीड्स टू हीट, राइट। तो what happens is, whenever you have current in a conductor, there is production of heat energy। तो production of heat energy, power मतलब basically it is power itself, तो दैट इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर, और इसको आई स्क्वायर आर लॉस भी बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो हीट जनरेट हो रहा है, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, कहाँ से आया, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका ही कुछ पार्ट लॉस हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, मोशन है, कोलिजन है, कोलिजन है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, हीट जनरेशन है, तो जो काइनेटिक एनर्जी था इलेक्ट्रॉन्स का वही लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो इसको आई स्क्वायर आर लॉस भी बोलते हैं। बाय द वे, इट इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी। तो कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, आई स्क्वायर इंटू आर। अभी हमने आई देखा था, आई क्या था, बी एल वी बाय आर इसका स्क्वायर इंटू आर, तो ये आपके पास आएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, तो आपको मिल जाएगा P इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। दिस इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी। मतलब हम जो वर्क डन कर रहे थे, किसके लिए वर्क डन किया था हमने, ये कॉइल को, इस लूप को बाहर निकालने के लिए। दस द वर्क डन इन पुलिंग द लूप थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो लूप था पी क्यू आर एस, ये मैग्नेटिक फील्ड में था, इसको हम लोग पुल कर रहे हैं थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। जो वर्क डन किया हमने इसको पुल करने में, इट अपीयर्स एज हीट एनर्जी इन द लूप। हमने जो वर्क डन किया, that is converted into heat energy, that is what I am trying to say, right? Simple thing। वापस एक बार रिपीट कर लेंगे, it is a very simple derivation, the idea is very very good and simple idea। so
Just a minute. I don't know from where did this come. ये है x यहाँ पे. This is x over here. Fine. Okay, so let us start all over again. Right. तो the idea was ये वही है जो हमने E is equal to minus d5 by dt प्रूव किया था. It is the same thing. सिर्फ यहाँ पे अब चेंजेस क्या है? चेंजेस कुछ भी नहीं है, हमको सिर्फ इक्वेशन जो है वो पावर के और हीट एनर्जी कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसका हमको देखना है इक्वेशन. तो ऐसा है कि हमारे पास एक कॉइल है PQRS which is inside a magnetic field. Initial flux linked with the coil is B into A, area inside the magnetic field, that is BLX. Okay, good. Then as soon as you pull this coil out, जैसे ही आपने इस कॉइल को बाहर पुल करने की कोशिश की, फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होगा मतलब EMF इंड्यूस होगा, और EMF इंड्यूस्ड होगा मतलब करंट इंड्यूस होगा. बट EMF इंड्यूस इज d5 by dt with a negative sign of course, बट हमको यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, तो E is equal to mod of d5 by dt. तो mod of d5 by dt will see that E is equal to mod of d5 by dt is, तो ये आ जाएगा आपका d dt of B into L into x, मतलब ये आ जाएगा आपका BL dx by dt, मतलब ये आपका आ जाएगा BLV. दिस इज EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल. तो ये आ गया आपके पास EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल का इक्वेशन जो हमने पहले भी करके रखा है. EMF इंड्यूस होना मतलब करंट इंड्यूस होना. तो करंट इन द लूप और द कॉइल इज E by R, where R is resistance of the material of the coil. क्योंकि हमने कॉइल जिस मटेरियल से बना के रखा है उसका रेजिस्टेंस होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक अल्टरनेट डायग्राम आपको दिखाया है. तो दिस second diagram number B, it just shows you that this particular coil जो भी लूप है हमारे पास PQRS, उसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा. दैट इज व्हाट इट शोज. सेकेंड डायग्राम. तो EMF induced is BLV और upon R, तो current is BLV by R. Okay, good. Now जैसे ही there is current in the coil, it means that you have part of the coil which are inside, which are current carrying and inside external magnetic field. अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर या उसका पार्ट है, तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है. तो साइड PQ पे एक फोर्स लगेगा F1 बार विच इज अपवर्ड्स, और SR पे लगेगा F2 बार विच इज डाउनवर्ड्स. These two are equal and opposite forces and they will cancel out each other. तो ये F1 और F2 जो है, they are going to cancel out each other. Cancellation. PS साइड पे there is a force जो कैंसिल नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए QR पे फोर्स लगना चाहिए था, लेकिन QR ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ही नहीं. गुड, राइट. So we know that the force acting on side PS is basically BIL sin theta. ये कैसे आया? डेफिनेशन ऑफ फोर्स से आया. फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज IL बार क्रॉस B बार. तो मैग्नीट्यूड की बात करूंगा अगर मैं, तो ये आ जाएगा ILB sin theta, where theta is angle between
लेंथ लेंथ मतलब ये length and magnetic field. So you can see length is from bottom to top and magnetic field is inside the plane. मतलब they are perpendicular to each other. मतलब theta is 90, sin 90 is 1. मतलब आपको मिल गया ये B into I into L. तो फोर्स आपको मिल गया B into I into L. गुड. अब हमको पता है कि अगर हमको इस कॉइल को बाहर पुल करना है, राइट, तो वर्क डन करना पड़ेगा. और वर्क डन अपॉन टाइम ये आपको देता है पावर. तो वी हैव टू टॉक अबाउट पावर हियर. सो यू हैव पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी. तो आपको मिल गया पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी. सो यू हैव पी इज इक्वल टू एफ बार डॉट वी बार, या फिर आप सिंपली एफ इंटू वी लिख सकते हो. क्योंकि एफ इंटू वी क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल बिटवीन एफ एंड वी इज बेसिकली 0. तो और 180, तो मैग्नीट्यूड वाइज इट इज एफ वी कॉस थीटा, एंड थीटा इज 0 और 180 इन दिस केस. तो वो माइनस एफ वी या प्लस एफ वी होगा, तो मैं उसका मॉड की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ एफ वी आएगा. यू कैन सी इट हियर. एक्सटर्नल फोर्स और वेलोसिटी दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड. यू कैन सी. तो 180 एंगल है, 180 एंगल है, तो cos 180 इज -1. तो -1. तो हम लोग मॉड की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने एफ इंटू वी लिखा. एफ हमने ऑलरेडी लिखा है, एफ बिल, एफ एस बी आई एल, और ये वी. और आई हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा हुआ है. आई इज बी एल वी बाई आर, बी एल वी बाई आर इंटू एल वी. तो ये आपको मिल गया पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर. दिस इज पावर. करेक्ट. अब क्योंकि वहां पे करंट है और रेजिस्टेंस है, मतलब वहां पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा जब आप लूप को बाहर निकालने की कोशिश करोगे. मतलब वी कैन सी व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी. तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी P इज आई स्क्वायर आर. और I अभी मैंने बताया इट इज बी एल वी बाई आर इसका स्क्वायर इंटू आर. सो दिस इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर. एक आर कैंसिल हो गया. Thus, the work done in pulling the loop through the magnetic field appears in the form of heat. Okay, so this is how you can derive this. So let's note it down now. Easy है ये. So we just have to note it down. So we have two diagrams here. So it is easy task. बहुत simple topic है ये. All you have to do is just to pay attention. और अगर आपको एक बार सब समझ गया है तो it's a really simple thing. Okay, so let me just make proper arrangement of this figure so that we will not find it difficult. Okay. तो ये जो second figure है, it is not strictly required. If you want, you can skip it. If you don't want to write it, draw it, just skip it.
Okay, so we'll put some captions also. मतलब फिगर 1 क्या दिखाता है, फिगर 2 क्या दिखाता है. We'll put some captions over here. So what we have is, हमारे पास है फिगर A. It is a loop which is moving out of magnetic field with velocity v. Loop PQRS moving out from a magnetic field, moving out of magnetic field. दूसरा, ये जो फिगर है, it is induced EMF, current I and collective resistance of the loop. It shows you induced EMF, current I and collective resistance of the loop. And collective resistance, collective क्यों बोल रहा हूँ, because as I told you कि ये जो resistance है, ये metal का resistance है, so collective resistance R. Okay, so what we will do is we will continue writing this topic in the next session because we have less time now, so we cannot go ahead in writing this thing. It will take time. तो मैं वापस एक बार क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ. स्टेप्स कौन से फॉलो करने हैं आपको पता है. कॉइल को बाहर मूव किया, EMF इंड्यूस हुआ, दैट इज BLV, दैट इज d∅dt, दैट इज इक्वल टू BLV. EMF इंड्यूस हुआ मतलब करंट इंड्यूस हुआ, E by R, तो BLV by R. तो करंट है और ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, तो फोर्स लगेगा, F1 F2 कैंसिल होगा, सिर्फ एक F फोर्स बचा है, दैट इज B into I into L. सो इट इज B, I की वैल्यू BLV by R into L. So this F is equal to B square L square V by R. Then we can talk about power, which is work upon time, which is force into displacement. Let us say displacement is denoted by S upon time, that is F into V, force into velocity. तो पावर आपको मिल गया B square L square V square by R, क्योंकि मैंने फोर्स को V से मल्टीप्लाई कर दिया. Then the work done that we are doing, क्योंकि हम इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहे हैं, मतलब हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो दैट वर्क अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इट इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर. और आई का स्क्वायर आप करोगे B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R. एक एक R कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R एज द हीट जनरेटेड. ओके, तो सिंपल है बहुत. सो वी विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट सेशन.